Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English School. So, today we'll study the topic tall and short. So, now let's see the concept behind tall and short. So, here what you have to do, color the box below the tall object. Means, among the given two objects, you have to identify the taller one. Okay, what you have to do, you have to identify the taller object, and below the box you have to color the box below the taller object. जो taller object के नीचे given box रहेगा उसको आपको क्या करना है, color करना है. Okay, so now look here. What is the concept of tall? Means which is greater in height. Okay, जिसकी height क्या होगी, ज़्यादा होगी. So here it is taller one, right, as compared to this second one. So we will color the box below this given object. So हम लोग क्या करेंगे, ये box को color करेंगे. Okay, so now okay, next we have to identify the tall among these two. Second picture में आप देख सकते हो there are two bottles, right? So which one is tall among these two? So first one, right? So we will color the first one. Okay, first one को हम लोग क्या करेंगे, color करेंगे like this. first one के नीचे जो box given है उसको color करेंगे. Then next, in the third picture there are two tables, right? This one is taller as compared to this, so we will color this box. हम लोग क्या करेंगे, ये वाले बॉक्स को कलर करेंगे, राइट? देन नेक्स्ट, okay, here there are two jokers, right? So we have to identify the taller one. So you can see first one is taller as compared to second one, so we will color the box below the first picture, first joker, right? So this one is taller. Understood properly? Tall का concept समझ में आया आपको? So this one is tall as compared to second picture. So this is tall and this is short, right? This is tall and this is short. यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, listen here, you have to color the box below the short object. अब यहाँ पे आपको short object का identify करना है. So which one is short among these two one? This one, second one. तो आप इसके नीचे वाले box को क्या करोगे, color करोगे. इन दोनों में से कौन सा short है, this one. So you will color the box below the short object. Understood properly? Got it? Tall and short का concept समझ में आया आपको? So जैसे tall और short है, वैसे ही similarly अभी हम लोग tallest and shortest देखेंगे. Means जब आप टू चीज किसी भी पर्टिकुलर टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करोगे, so you will say tall, but when it is more about two. Okay, यहाँ पे देखो 3 dogs है, so अब इसमें से तीनों में से सबसे ज्यादा जिसकी हाइट होगी, so उसको हम लोग क्या बोलेंगे, tallest. What we will say, tallest. और जिसकी हाइट सबसे कम होगी as compared to everyone, the one who is shortest. Okay, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सबसे छोटा है, the one who is very short is considered as shortest. Okay, so now ये 3 और डॉग्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है. यू हैव टू कलर द बॉक्स बिलो द टॉलेस्ट डॉग. मीन्स जो टॉलेस्ट डॉग होगा उसके नीचे जो गिवन बॉक्स है उसको आपको कलर करना है. सो दिस वन हियर आप देख सकते हो, थर्ड पिक्चर में जो डॉग है दैट इज वन. सो आप क्या करोगे, कलर करोगे टॉलेस्ट डॉग को. ओके, देन next, second, color the box below the shortest tree. Now what you have to do, you have to identify the shortest tree. Means सबसे छोटा, जिसकी हाइट क्या होगी, सबसे कम. So you can see here first, second और third में सबसे कम हाइट किसकी है, थर्ड ऑब्जेक्ट की. So it is the shortest one. तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को के नीचे जो बॉक्स है उसको कलर करोगे. ओके, next, color the box below the shortest pillar. So now you have to identify the shortest pillar among the given 3 pillar. So look properly, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 3 पिलर्स गिवन है आपको. तो इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट वन है वो है, राइट? तो आप इसके नीचे जो गिवन बॉक्स है उसको क्या करोगे, आप कलर करोगे लाइक दिस. ओके, अंडरस्टूड? टॉल, शॉर्ट, देन टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, ये कंसेप्ट देखे हम लोग ने. क्लियर? नेक्स्ट, तो आपको कंसेप्ट समझ में आया टॉल शॉर्ट का. टॉल मीन्स व्हाट, जो हाइट में क्या होगा, ज्यादा होगा, और शॉर्ट जो हाइट में कम होगा, राइट? एंड देन टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट में क्या देखे हम लोग ने, टॉलेस्ट में जो सबसे ज्यादा, मीन्स गिवन 3 ऑब्जेक्ट्स और जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा जिसकी हाइट होगी वो टॉलेस्ट, जिसकी सबसे कम होगी, जो सबसे स्मॉल होगा, दैट इज शॉर्टेस्ट. ओके, नेक्स्ट, हैवी एंड लाइट.
आपको क्या पढ़ना है, हैवी एंड लाइट का कंसेप्ट समझना है। हैवी का मतलब क्या होगा, भारी, जिसका जो वेट है ना। अब देखो हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट आप जब हाथ में उठाते हो तो उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, राइट, यू फील द वेट। सो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा, मीन्स विच इज डिफिकल्ट टू कैरी, राइट, जिसका वेट ज्यादा होता है उसको उठाना, उसको कैरी करना डिफिकल्ट होता है। सो द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज द हैवी ऑब्जेक्ट विच इज लाइट इन वेट, इसका वेट कम होगा, है ना। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट। ओके, so now here you have to identify heavy and light. So color the box below the heavy object. So now look, here there are two objects. First one, first क्या है, cylinder, gas cylinder. Second water bottle. So among these two, ये दोनों के बीच में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हैवी होगा, राइट। सो यू नो वेरी वेल कि जो गैस सिलेंडर होता है उसको कैरी करना, उसका वेट ज्यादा होता है, उसको कैरी करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू वाटर बॉटल। सो यू विल कलर द बॉक्स बिलो द गैस सिलेंडर। ओके, सो नाउ हियर आई विल कलर दिस फर्स्ट बॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट, given two objects are pomegranate and peacock feather. सो ना पोमोग्रेनेट एंड पिकॉक फेदर के कंपैरिजन में कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है? द फर्स्ट वन। यू नो जो फेदर होता है वो बहुत लाइट होता है, राइट। सो द पोमोग्रेनेट हैज हैवी वेट, सो यू विल कलर द फर्स्ट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट, कलर द बॉक्स बिलो, कलर द बॉक्स बिलो द लाइट ऑब्जेक्ट। अब लाइट ऑब्जेक्ट्स के नीचे जो बॉक्स होगा उसको क्या करना है, आपको कलर करना है। सो नाउ लुक हियर, इट्स द बॉल एंड हियर इट्स द बलून। सो बलून एज कम्पेयर टू बॉल बड़ा है, इट इज बिगर वन, बट लाइट होता है ना, बिकॉज उसमें क्या होती है, एयर होती है, सिर्फ थिन लेयर के अंदर उसमें सिर्फ क्या होती है, एयर होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज लाइटर देन बॉल। सो यू विल कलर द बॉक्स बिलो द बलून। ओके, हियर यू विल कलर इट। सो हैवी एंड लाइट का कंसेप्ट समझ में आया आपको? मीन्स जिसका वेट ज्यादा होगा वो हैवी कंसीडर करेंगे इसको, और जिसका वेट कम होगा वो इसको हम लोग लाइट कंसीडर करेंगे। नाउ near and far. So now let's understand the concept of near and far. So here in the picture you can see there's a girl having a small toy car and doll. So you can see the car is present just okay, it is present as very less distance from the girl, means girl से बहुत कम distance पे, बहुत पास में रखी हुई है कार, but the doll is kept at a larger distance. Here it is kept at some distance. So the object, right, जो object क्या है, कम distance पे है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, near, right, क्या बोलेंगे, near, means ये जो girl है उससे near, उसके करीब कौन सा object है, कार है, so that is considered as the nearest object. Then जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, दूर रखेंगे, डिस्टेंस पे रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फार ऑब्जेक्ट। ओके, फार। सो नियर मीन्स करीब, फार मतलब दूर। समझ में आया? नाउ वी विल सॉल्व द एक्टिविटी। सो नाउ लुक, द बॉक्स डैश is near Rama and the dash is far from Rama. अब देखो ये जो गर्ल है नेम्ड एज रमा, उसे नियर कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके फार कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, that you have to write in the box. So now let's write down. So the object which is near is, you get car. So in the box you will write car. So the spelling of car is C-A-R, car. Okay, you will write here in the box car. So next, and the dash is far from Rama. Dash is far, क्या दूर रखा हुआ है Rama से distance पे, doll. So in this next box you will write doll, and the spelling of doll is D-O-L-L, doll. Okay, so here we have completed the statement. The car is near Rama and the doll is far from Rama. Okay, समझ में आया? Next, in next picture you can see there are three persons, one boy, one little boy, one man and one woman.
The woman is standing near the wall, right? She's fetching the water from the well. Okay, ये wall जो well है, right? उसके दीवार के पास खड़ी हुई है, उसके near है और वहाँ से water fetch कर रही है. Then the particular next person, this man is carrying the water, right? This dog is here standing. अब आपको picture properly observe करना है and activity complete करना है. So now first question, who is the nearest to the wall? कौन सा जो पर्सन है वो वॉल जो वेल गिवन है उसे नियरेस्ट मीन्स वो सबसे ज्यादा करीब है ना. सो यू कैन सी हियर दिस वुमन हु इज फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल इज नियरेस्ट, राइट? So in this box what you will write, you are going to write woman is nearest. So now let's write down the answer. In this box we will write woman, so spelling WOMAN, woman. Okay, got it. Next, who is the farthest from the well? Who is the farthest means what? जो दूर हो सबसे ज्यादा, है ना. So you can see here this dog is farthest. dog क्या है? सबसे ज्यादा दूर है. ये पर्सन तो है बट उससे भी ज्यादा दूर खड़ा है ना. डॉग इज स्टैंडिंग एट द एंड पॉइंट. हियर यू कैन सी. सो in this box DO. Okay, so we have completed the activity. Who is the nearest to the well? Woman. And who is the farthest from the well? Dog. So concept समझ में आया आपको. near का मतलब करीब और far का मतलब दूर. nearest means जो given ऑब्जेक्ट्स है या फिर जितने भी लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा करीब कौन है? नियरेस्ट. एंड फारदेस्ट जो सबसे ज्यादा दूर. ओके ओके, ना नेक्स्ट टॉपिक है is left and right. So now let's see the concept behind left and right. So now look, you know there are two hands right here in the object. So the this particular hand is considered as left. means जो ये साइड की डायरेक्शन होती है. if you are pointing any object in this direction, ये एरो, अगर ये साइड आप एरो कर रहे हो सो उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? लेफ्ट. क्या बोलेंगे? लेफ्ट. एंड एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन मीन्स उसके एग्जैक्टली अपोजिट वाले सामने वाली जो डायरेक्शन होगी दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन और दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज राइट. ओके, left, this is right. Okay, next, so here you have to understand the concept properly. So now look, there are two hands. So this particular hand is considered as the left hand, right? अब आपके hand में भी आपको identify करना रहेगा कौन सा left रहेगा, that is present on this side. और कौन सा hand right hand रहेगा, that is present on this side, right hand, right? So whenever it's about left, you will consider this direction, and whenever it is about right, you will consider this direction. Okay, next. Now let's understand the concept of less time and more time. Okay, less time. First you know time. देखो किसी भी चीज को अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, राइट? लेस का मतलब क्या होता है? देखो कम, है ना. लेस का मतलब क्या होता है? कम. और मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा. तो लेस टाइम मीन्स किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए अगर आपको कम टाइम लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेस टाइम. अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मोर टाइम. ओके, सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. Color box under the vessel which will fill in less time. Okay, now look, there are two ऑब्जेक्ट्स, टू वेसल्स, दो बर्तन. एक वाटर बॉटल है छोटी सी और एक टैंक है ना. ये छोटा सा टैंक. तब इन दोनों के कंपैरिजन में एक ही टैप के नीचे रखे हुए दोनों, ठीक है. देखो अब दोनों के कंपैरिजन में कौन सा जो वेसल है वो पहले फिल हो जाएगा? लेस टाइम में, मतलब कम टाइम में. विच वन इज स्मॉलर, राइट? सो ये वाला जो फर्स्ट बॉटल है वो जल्दी से फिल हो जाएगा ना, लेस टाइम में मतलब कम टाइम में. तो यहाँ पे हम लोग इसको ये वाले बॉक्स को कलर कर देंगे.
Okay, next, color the box under the picture of the vehicle which takes more time for journey. Okay, now look, there are two vehicles. One is bullock cart, right? And then second one is bus. तो more time means ज़्यादा time जर्नी के लिए लगेगा. अब देखो जर्नी, अब आप ट्रेवल करते हो तो बस आपको जल्दी पहुंचाएगी ना किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, है ना? और जो ब्लॉक कार्ट है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा. यस, करेक्ट आंसर. सो द पर्टिकुलर व्हीकल विच विल टेक मोर टाइम मीन्स ज़्यादा टाइम, बहुत स्लो स्लो चलेगी तो टाइम लगेगा ही ना, है ना, कंपेयर टू बस. तो यहाँ पर हम लोग इसको फिल, इसके नीचे जो बॉक्स है वो फिल कर देंगे. ठीक है, इट विल टेक more time. Okay, next,